السلام علیکم ناظرین، پروگرام اکانومی ان فوکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان باقر عباس جعفری۔ پروگرام کے آغاز میں ہی ہم آپ کو ایک امپورٹنٹ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں۔ جس طریقے سے 2018 میں پرائم منسٹر عمران خان نے یہ وعدہ کیا تھا، یہ عہد کیا تھا کہ 5 ملین ہاؤس ہولڈز نیا پاکستان کے تحت بنائیں گے۔ Now a lot of criticism came afterwards کہ کیا یہ ممکن ہے؟ اب جب 2.5 سے 3 سال ہونے کو آئے ہیں تو ہم آپ کو لیٹسٹ اسٹیٹ جو آپ کے سامنے نظر آئیں گی ابھی نیا پاکستان کی، جو نادرا کا ریکارڈ ویریفائیڈ ہے، if our production team can show you، وہ آپ کو یہ بات بتائے گا کہ 2 ملین ایپلیکیشنز آ چکی ہیں اور اس میں سے 1.8 ملین ایپلیکیشنز ایلیجیبل قرار دے دی گئی ہیں نادرا کی طرف سے۔ So 1.8 what does it suggest؟ کہ تقریباً 36% جو ٹارگٹ تھا 5 ملین ہاؤس ہولڈ بنانے کا، وہ ایلیجیبل ایپلیکینٹس کی صورت میں آپ کے ڈیٹا میں آ گیا ہے۔ Now what does it mean؟ کہ اگر یہ 36% ایپلیکینٹس اپنی اپلیکیشنز اپروو کرا لیتے ہیں بینکنگ سسٹم سے اور ان کو ہاؤس کے لیے ایلوکیشن مل جاتی ہے، تو جو ہاؤس ہولڈ سیکٹر میں، کنسٹرکشن سیکٹر میں اور الائڈ انڈسٹری میں جو بوم آنے والا ہے، جو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیمنٹ ڈسپیچز میں رجسٹر نہیں ہوا ہے، بیکاز شروع کے 2 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر جو پروسیجرل ریفارمز کیے گئے، لیگل ریفارمز کیے گئے، جس میں بینکنگ سیکٹر کو امپاور کیا گیا، مارگیج کے رول میں قوانین کے اندر تبدیلی کی گئی، اس سے ایک بنیادی انفراسٹرکچر بنانا بہت ضروری تھا، وہ بن گیا ہے۔ اب یہاں سے ہم نمبرز میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہوا یہ سب چیزیں دیکھیں گے۔ اس تمام تر ڈسکشن پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی ایکسکلوسیو پینل آف گیسٹ موجود ہیں۔ مسٹر زیغم محمود رضوی جو کہ چیئرمین ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ ٹاسک فورس کے، ان سے جانیں گے کہ ابھی کیا سٹیٹس ہے، کیا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا۔ ہمارے ساتھ میں موجود ہیں مسٹر بلال فیاض صاحب جو کہ ہیڈ آف کنزیومر فائنانس ہے، بینک اسلامی سے تعلق ہے ان کو چونکہ بینکنگ سیکٹر میں ایک بینک کو لیڈ کر رہے ہیں، یہ وہ مسائل بتائیں گے کہ کسٹمرز کے کیا مسائل ہیں، ابھی کیا ڈیمانڈ آ رہی ہے، کیا کامن کوشچنز ہیں that need to be answered۔ بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا۔ that we have with us Mr. حسن بخشی صاحب جو کہ فارمر چیئرمین ہے آباد کے، ان سے ہمارے پروگرام میں ہوتے ہیں اور یہ اس انیشیٹو کو کافی لیڈ کرتے ہیں، خاص طور پہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر۔ ان سے چیدہ ڈیولپمنٹس پوچھیں گے جو ابھی ریسنٹلی ہوئی ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر بھی۔ بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا۔ ناظرین اگر میں کچھ اسٹیٹس آپ کے سامنے اور دکھاؤں نیا پاکستان ہاؤسنگ کی، so if my production team can share some of the key data with you۔ جی تو اگین ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن کے اندر جو نیا پاکستان ہاؤسنگ میں رجسٹر ہوئے ہیں اس میں میل بھی شامل ہیں، تقریباً 4 سے 5 لاکھ فیمیلز بھی شامل ہیں، تو خواتین بھی اپلیکیشن فائل کر رہی ہیں اور یہ پہلا فیز تھا جو کہ اب کلوز ہو چکا ہے۔ تو بیئر ان مائنڈ کہ 1.8 ملین ایپلیکینٹس نے اپلائی کر دیا ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ کے اندر، جو کہ 36% ہے اس ٹارگٹ کا جو کہ پرائم منسٹر عمران خان نے دیا تھا۔ تو اب جو چیزیں جو ہوا میں لگ رہی تھی آپ کو وہ ایکچولی نمبرز میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں۔ اگر if we can move forward with some of the other data that we have collected، if we can move forward، تو ہم آپ کو کچھ نیوز اسنیپ شاٹس دکھا رہے ہیں کہ انڈسٹری میں ہو کیا رہا ہے۔ لکی سیمنٹ جو ایک سیمنٹ بنانے کی نمبر 1 کمپنی ہے، سب سے زیادہ کیپیسٹی ہے اس کی، وہ اپنی ایکسپینشن میں جا رہی ہے، 3.15 ملین ٹن ایکسپینڈ کر رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں ان کے ریزلٹس دیکھیں تو 210% اضافہ ہوا ہے ایئر آن ایئر ان کے کوارٹرلی ریزلٹس کے اندر۔ سو دیٹ شوز کہ ڈیمانڈ سائڈ جو لیڈنگ سیکٹرز ہیں وہاں سے بھی آ رہی ہے۔ اف یو کین موو فارورڈ ود سم آف دی ادر سلائڈز ایز ویل، اگر کچھ اور سلائڈ دکھائیں۔ سیمنٹ میں اگین یہ AKD کی ریسرچ ہم آپ سے ہائی لائٹ شیئر کر رہے ہیں کہ جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت انکریز ہو رہی ہے، اینڈ ناؤ دا سیمنٹ پلیئرز آر تھنکنگ ٹو ایکسپینڈ دیئر پروڈکشن کیپیسٹی، جو نارتھ ریجن میں بھی اور ساؤتھ ریجن میں بھی۔ تو یہ تمام تر وہ ڈیٹا ہے جو آپ سے شیئر کر رہے ہیں جو بتاتا ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی اس سیکٹر میں بہت تیزی سے ریوائیو ہو رہی ہے۔ اف یو کین موو فارورڈ فردر، تو یہ اگین سیمنٹ ڈیمانڈ اپ بیٹ اگین ہم نے دیکھا، اور مزید اس میں آگے جائیے تو آپ کو اور 2-3 کی اسٹیٹس آپ کو نظر آئیں گی۔ سو اگر آپ پرائسنگ ہسٹری کی دیکھیں تو سیمنٹ کی کمپنی نے پچھلے فروری 2020 سے 1 فروری 2021 تک اگر انجینئرنگ سیکٹر کو دیکھیں تو اسٹاک ایکسچینج میں 122% کے قریب ریٹرن دے چکا ہے۔ سیمنٹ سیکٹر 75% ریٹرن دے چکا ہے، جبکہ KSE 100 انڈیکس اور بینچ مارک جو ہے وہ تقریباً 15% ریٹرن دیا ہے۔ تو یہ آپ کو چیز بتا رہی ہے کہ جو انویسٹرز آر آئنگ فار فیوچر گروتھ ان پروفیٹیبلٹی۔ تو یہ تمام تر کی ڈیٹا پوائنٹس ہیں، اس میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے میں ہمارے ساتھ موجود ہے زیغم صاحب آپ سے اس پہ تھوڑا فیڈ بیک لینا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک چیز میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ گھروں کی ضرورت یہ کوئی چوائس نہیں ہے، گھروں کی ضرورت ہے۔ مثلا 2019 میں ہماری آبادی میں جو اضافہ ہوا 42 لاکھ 4.2 ملین، دنیا میں 86 ملک ایسے ہیں جن کی آبادی 4 ملین سے کم ہے۔ تو
تو اب جب 42 لاکھ آبادی میں اضافہ ہوا ہے تو 6% 6% پر ہاؤس ہولڈ کا مطلب ہے 7 لاکھ گھروں کی مزید ضرورت پیدا ہو گئی صرف ایک سال میں. ٹھیک ہے. تو گھر بنانا نہ بنانا چوائس نہیں ہے, یہ کرنا ہے. اب ایشو یہ تھا کہ پہلے ہم پولیٹیکل سلوگن میں آیا تھا, مطلب بھٹو صاحب نے بات کی, اس میں کوئی اچھی بات ہے, بہت بری کی بات نہیں, انہوں نے اس کو ہاؤسنگ کو فوڈ کلودنگ اینڈ شیلٹر لائے, پولیٹیکل سلوگن بنایا, اس سے اویئرنیس آئی پولیٹیکل سسٹم میں. بدنس اچھائی یہاں ہے, لیکن برائی یہ تھی کہ کچھ آن گراؤنڈ کیا نہیں. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ گیلانی صاحب نے بھی 1 ملین گھروں کا کہا تھا, کاش گراؤنڈ پہ جاتے. پھر نواز شریف صاحب نے 5 لاکھ سالانہ کیا تھا. عمران خان صاحب نے جب یہ کہا تو لوگوں نے کہا یہ بہت بڑی فگر ہے. میں نے جیسے آپ کہا 7 لاکھ کے حساب سے سالانہ گروتھ پیدا ہو رہی ہے, لیکن انہوں نے جو کام کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیے, حسن بخشی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ایوری تھرسڈے پرائم منسٹر ہیز اے میٹنگ ود دی اسٹیک ہولڈرز. مجھے انہوں نے جب پہلے کہا تھا, میں ان سے کہتا تھا, تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پالیسی بناؤ. تو عمران خان صاحب نے ہاؤسنگ پالیسی جب میں نے بنائی, the only PTI policy which he personally announced, and he came all the way down on my request to آباد ہاؤس, اور آباد ہاؤس میں انہوں نے آ کے یہ ہاؤسنگ پالیسی کا اعلان کیا. اور حسن بخشی صاحب گواہ ہیں کہ پرائم منسٹر نے بہت کلیئرلی کہا تھا کہ گورنمنٹ ول پلے دی رول آف انیبلر اینڈ فیسیلیٹیٹر. میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ آباد ڈیولپرز, یہ ہماری جو ڈیولپر انڈسٹری ہے, گھر یہ بنائے گی. حسن بخشی صاحب جیسے بات بڑھے گی تو بتائیں کہ میں سنا ہے کہ, اور دیکھ بھی رہا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ لوگ کئی منصوبے میں کام کر رہے ہیں. حسن صاحب کی طرف آ جاؤں. حسن صاحب آپ تو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ بتا دیں جو پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے, اس میں کیا چیزیں طے پائی ہیں؟ دیکھیں جمعرات کو جیسا بتایا گیا ہر تھرسڈے ہماری میٹنگ ہوتی ہے. لاسٹ تھرسڈے میٹنگ ہوئی تو وہاں پر زلفی بخاری صاحب بھی تھے. انہوں نے کہا کہ ایکسپیکٹریٹ پاکستانی کو کچھ پاکستان کے نام پہ بلڈر ڈیولپر چیٹ کر رہے ہیں. چیٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اسکیم بناتے تو ہیں, یہاں پر ہوتی نہیں, آن گراؤنڈ پر کاغذ پہ ہوتی ہے, اور مڈل ایسٹ سے یورپ سے پیسے لاتے ہیں اور پھر وہ نظر نہیں آتے. تو اس میں پھر پرائم منسٹر نے کہا کہ بالکل صحیح بات ہے, نہ صرف یہ لوگ چیٹ کر رہے ہیں بلکہ یہ پاکستان کے امیج کو بھی خراب کر رہے ہیں. تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہم اس میں تمام انفورسمنٹ ایجنسیز کو انوالو کریں گے, اور ہماری بھی اس میں ریکویسٹ تھی کہ سر دیز پیپل شوڈ بی ٹریٹڈ ایز کرمنلز. یہ کوئی بزنس مین نہیں ہے, یہ کرمنلز ہیں, نہ ان کے پاس زمینیں ہیں نہ کچھ ہے. انہوں نے ایک ڈبہ بنایا, 4 کمرے بنائے, گورنمنٹ لینڈ پہ 25-50-100 کروڑ 500 کروڑ پہ جمع کیے اور بھاگ گئے, اور اپنا یہاں کا بھی کانفیڈنس خراب کر رہے ہیں اپنے لوگوں کا, ایکسپیکٹریٹ پاکستانیوں کا بھی کر رہے ہیں, اور بدنامی الگ ہے. تو آج بھی ہماری اس سلسلے میں میٹنگ تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے لوگوں کو, عام آدمی کو ہڈوئنگ کیا ہے, اب ان کے ڈیز نمبرڈ ہیں, کیونکہ اب پرائم منسٹر کے دماغ میں یہ کلیئر بات ہے کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے, ان لوگوں کے خلاف بالکل لیگل کارروائی کی جائے, اور ضرورت پڑے تو ہم اس میں ایف آئی اے کو بھی انوالو کریں. ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ اب تک ہوتا کیا تھا کہ جو پولیٹیکل چین ہے, ہر کسی بلڈر کی ایک پولیٹیکل ایفیلیشن ہوتی ہے, تعلقات ہوتے ہیں, تو بچ کے نکل جاتے تھے. تو یہ ایف آئی اے کا انوالو ہونا بہت ضروری تھا. میں سمجھتا ہوں, دیکھیں یہ جو میں اس کو تھوڑی کلیئر کروں, یہ جو آپ نے کہا نا بلڈر نہیں ہے, یہ کرمنلز ہیں. کرمنل ہے, دیکھیں, کیونکہ جن کی زمین نہیں ہے, اسٹیٹ کی لینڈ پہ بیٹھ گئے, 2 کمرے بنائے اور بکنگ کرنا, بیسیکلی قبضہ کیا, اور اس کے اوپر جی, یہ انکروچرز ہیں, ٹریسپاسرز ہیں, کرمنلز ہیں. اس کو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا بلڈر کا لفظ ہی استعمال نہیں کریں. صحیح, ٹھیک ہے نا, انکروچرز ہیں. ہاں, یہ انکروچرز ہیں, اور یہ اسٹیٹ لینڈ پہ قابض ہو رہے ہیں, تو بالکل ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی پورے پاکستان میں. اپروکسیمیٹلی کتنا, یہ کتنے نمبر کتنا ہے اراؤنڈ, مطلب کہ 100-150؟ یہ میرے خیال میں کل پرسوں یہ نمبر شیئر ہو رہے تھے, یہ پورے پاکستان میں ہزاروں کی تعداد کی سوسائٹیز ہیں جو انلیگل, ان آتھرائزڈ, ان اپرووڈ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ جب آپ دنیا بھر میں اپنا ٹرسٹ لے کر آ رہے ہیں, اور نیا پاکستان کے اندر بھی آپ اٹریکٹ کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کو, اس وقت یہ انلیگل, بیکاز obviously جب گروتھ آتی ہے کسی بھی سیکٹر میں, تو یہ انکروچرز بھی اسی تیزی سے بھاگتے ہوئے چلے آتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا, اور یہ انکروچر جب گھستے ہیں تو ساری اسکیم ڈیڈ ہو جاتی ہے, کیونکہ ایک آدھ 2 برا ایگزامپل کریٹ ہو جائے. جیسے بینک کے پاس بھی جب لوگ لون لینے جاتے ہیں تو ہم انشور کرتے ہیں کہ انہی لوگوں کو ریکمنڈ کریں یا جو کلیئر ہوں. ٹھیک ہے, بندہ 2-4 بینک کسی کو ایسے کو پیسے دے گا, آئندہ دے گا ہی نہیں. تو یہ ہماری آپ کی ایک سوشل, مورل, ایتھیکل ذمہ داری ہے کہ اچھے لوگوں کو پروموٹ کریں, بھلے وہ چھوٹے ہوں. ٹھیک ہے, اس میں کنفرمیشن کس طرح, اگر کوئی شخص لون لینا چاہ رہا ہے اور کوئی ایسی اسکیم آئی ہے, تو کس طریقے سے کنفرم کرے کہ یہ جینوئن ہے؟ there has to be a method, because بہت سے لوگ اس کی وجہ سے کافی پھنستے ہیں. دیکھیں, ہم اب یہ بات ہو رہی ہے کہ پورے پاکستان کی جینوئن اسکیم جو ہے
एक वेबसाइट पर डल जाए, ठीक है, और जो भी बायर है उस वेबसाइट को विजिट करे और वहां से देख ले कि वो है या नहीं। एक और शिकायत भी जनरली है कि अगर 1000 प्लॉट हैं और 2000 बेच दिए, ठीक है, तो उसके लिए भी कोई मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं। देखिए, आफ्टर ऑल ये फील्ड डिसिप्लिन रेगुलेटेड होगी और इतनी बढ़ेगी कि हमारी तवक्का से ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे जैगम भाई ने कहा कि आज पाकिस्तान में कभी बिल्डर सोचता नहीं था, आज 5-5 हज़ार मकान बनाने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि बैंक्स आ गए हैं। पहले तो सब डिपेंडेंट था कस्टमर एडवांसेस पे, बिल्कुल। अब तो क्या ये है कि 25% एडवांस लिया, बाकी बैंक से पैसे लेके डिलीवर करने पे उनको 75, जैसे दुनिया में होता है। तो अब आप ये समझिए ये पूरा पैराडाइम शिफ्ट होने जा रहा है, और इसमें यकीनन तमाम सीनियर हजरात की, जिसमें जैगम साहब भी हैं, जनरल अनवर की भी, और इमरान खान की पूरी टीम की बड़ी 2.5 साल की मेहनत है। आप 1.5 साल बाद इस इंडस्ट्री को देखिएगा तो बिल्कुल फर्क हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बिलाल साहब आपको लेना चाहूंगा डिस्कशन में, बिकॉज बैंक्स स्टेट बैंक के साथ मिलकर एक बहुत ही कलीदी रोल प्ले कर रहे हैं, खासतौर पे क्योंकि कोविड टाइम्स में भी लोगों ने कहा था कि प्रोजेक्ट्स काफी डेड हो जाएंगे, लेकिन बट बैंक्स केप्ट ऑन पुशिंग कि एप्लीकेशंस रिसीव करें, प्रोसेस करें, और स्टेट बैंक ने जो आपकी कंसेशनल लेंडिंग की और स्कीम्स लेकर आए, तो ओवरऑल इकोनॉमी में जीडीपी डिक्लाइन इतना नहीं हुआ। हाउ डू यू सी कि बैंक्स का क्या कलीदी रोल है और कितनी एप्लीकेशंस फॉर एग्जांपल आपके बैंक्स को रिसीव हुई और क्या एक्सपेक्टेशंस थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। बैंक्स का काफ़ी की रोल है, और जितना मैंने फोकस आजकल स्टेट बैंक को देखा है इस चीज़ के ऊपर करते हुए, मैंने गुज़श्ता कोई वीक पहले ही, कि मेरे ख्याल से हम 2-3 मीटिंग्स कर चुके हैं। आज सुबह भी हमारी मीटिंग थी टू प्रमोट दिस हाउसिंग सेक्टर, और स्पेशली जिसमें मेरा पाकिस्तान मेरा घर है सारी चीज़ों के अंदर। इसमें जिस तरह से हसन साहब ने कहा, जैगम साहब ने कहा कि हमारा, वैसे अगर आप इंडस्ट्री पूरा पाकिस्तान का देखें तो जीडीपी टू मॉर्गेज बहुत कम है, इस अराउंड 0.25 और 0.3% के करीब और है। रीजनल एवरेज रीजनल एवरेज कोई 3% के करीब है, जिसमें हमारे पीयर मुल्क जिसमें 8 टाइम्स ग्रोथ आपकी है, बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज विच आर यू नो आवर नेबर कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, इंडिया वगैरह, उसके साथ श्रीलंका के साथ। तो इसके अंदर जो मेन चीज़ जो थी, जो बैंक थोड़े बहुत इस पर हम मतलब कि बैंक इस्लामी का, इसमें मैं कहूँगा कि बी डूइंग दिस हाउसिंग फाइनेंस, कंज्यूमर फाइनेंसिंग फ्रॉम क्वाइट अ टाइम, फ्रॉम मैनी मंथ्स। मैं कहूँगा कि हम तकरीबन गुज़श्ता कोई 13 साल से हैं इसमें माशाल्लाह इस बिज़नेस के अंदर। दूसरे बैंक्स थोड़े से इसमें थोड़े से हिचकिचाते थे आते हुए, रीज़न इज़ वाई के फोरक्लोजर लॉज जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया वो भी थोड़े से स्ट्रिंजेंट नहीं थे। नाउ दे हैव बीन चेंज। क्या उसमें तब्दीलियाँ आई हैं जो कि आपको बैंक्स को हौसला अफजाई की है कि बैंक इस फील्ड में आए? मतलब बैंक के अंदर उसमें काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा उसके अंदर कि अब फोर्स क्लोजर लॉ जिस तरह से है, अब मतलब कि हम उस पर आसानी से मतलब कि फाइनेंसिंग कर सकते हैं, मतलब कि हमको ये नहीं, अगर कोई पे नहीं करे तो बैंक्स को ये ज़्यादा इख्तियार है कि वो लीगल सिस्टम के थ्रू प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकते हैं, रिडीम कर सकेगा इंशाल्लाह, एज कम्पेयर टू अदर पहले जो लॉज थे, फिर स्टे आ जाता था, तो इस वक्त बैंक थोड़े से हिचकिचाते थे इसके, बिकॉज ये एक बड़ा इशू था। यू पॉइंटिंग इट राइट कि स्टे ऑर्डर लेना 30 से 40 हज़ार रुपए का गेम होता था, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के ऊपर, और वो ले लिया आपने और फिर आप बैंक फंस गया और वो सालों साल केस चला, सालों साल केस चला। तो इसके ऊपर काफ़ी कंफर्ट आया है सारी चीज़ों पे। दूसरा, जितना इस पर फोकस आजकल चल रहा है, बिकॉज सबसे मतलब कि बैंक्स, मैं ये कहूँगा तमाम बैंक्स माशाल्लाह इस पे पूरे गेयर अप हुए हैं। हमारा तो एक मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर था, इस्लामिक आप फाइनेंसिंग ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं हाउसिंग सेक्टर के अंदर, ये सारी चीज़ें। और इसमें दोनों चीज़ें, एक तो जिस तरह से बिल्डर फाइनेंस भी मौजूद है और दूसरा कंज्यूमर फाइनेंस भी मौजूद है। यानी कि अगर जिस तरह से कोई डेवलपर है, उसको कोई अगर किसी चीज़ को डेवलप करनी है, ज़मीन और वहाँ पे प्लॉटिंग करके बेचनी है, तो बैंक्स आर इंक्लाइंड टू फाइनेंस दैट प्रोजेक्ट्स आल्सो, ठीक है। दूसरा, अगर उसके पर एंड यूज़र फाइनेंसिंग है, जिसके अंदर मतलब कस्टमर आता है जो कि सैलरीड है या कहीं कोई काम करता है या जॉब करता है या अपना उसका कोई छोटा मोटा बिजनेस है, तो उसको भी फाइनेंसिंग इजीली अवेलेबल है इस तरह। तो बोथ एंड पे मैं थोड़ा सा जगह से आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप जब तक मुझे चैलेंजेस का थोड़ा सोचिए, क्या चैलेंजेस हैं, आई कम बैक टू दैट। जगह साहब ये बताइए कि ये जो फाइनेंसिंग अवेलेबल कर दी गई है अब आम आवाम के लिए और एक पार्टिसिपेशन भी आ गई है यहाँ पे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की तरफ हम कितनी तेजी से, अब कोई कदगन तो नहीं है यहाँ पे कि हाउ सून कैन वी गो आउट एंड रिफ्लेक्ट इन नंबर्स, बिकॉज अपोजिशन यही आपको कहती रहती है कि जमीन पर नहीं देखेगा। अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें ना, तो हसन भाई ज़्यादा जानते हैं कि सिर्फ इस मुल्क में HBFC एक्टिव थी, फिर बाद में इस्लामिक बैंक्स एक्टिव हुए।
ہمارے ملک میں آج بھی جو آؤٹسٹینڈنگ مارگیجز ہے نا 70 برس کے بعد جی جی وہ 106-107 ارب کے قریب ہے. صحیح ہے. ہمارے نیبرنگ کنٹری میں ایک ادارہ ہے HDFC, ایک ہاؤسنگ فائنانس کمپنی ہے, وہ 200 سے 250 ارب سالانہ نئے قرضے دیتی ہے. اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلو کوانٹٹی ہے ایڈیشنل سال کے جتنے ہیں ویسے ہماری 70 سال کی جیسے اسکیم انہوں ہے. نے کہا کہ 0.3% آؤٹسٹینڈنگ مارگیج GDP کا ریشو ہے. بنگلہ دیش 4%, انڈونیشیا تو کافی زیادہ ہے, ایون آپ ملیشیا کے دیکھو 26-27%, بہت ہی لو بیس افیکٹ سے چل رہے ہیں آپ. تو انڈیا از اباؤٹ 11%. تو 0.3 میں بھی جو کچھ بھی ہے اس میں HBFC کے بعد سارا اسلامک بینک کا حصہ تھا. تو اب جو ایک چیز ہم نے بہت محنت کے, حسن بخشی صاحب تو میرے ساتھ ٹاسک فورس میں تھے, ہم نے فائٹ کیا کہ اس کو کہلاتا ہے مینڈیٹری اور ڈائریکٹڈ کریڈٹ, کے بینکوں سے کہا جائے کہ 1% آپ نے فائنینسنگ کی ہاؤسنگ سیکٹر میں دینی ہے. ہمارا تو مطالبہ 10% تھا, لیکن بہرحال اب 5 پہ انہیں ہوا ہے. تو کوئی بات نہیں, ابھی تو تقریباً نہ ہونے کے برابر سے 5 پہ ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اکبر شیخ صاحب آپ کے پروگرام میں شاید آئیں, وہ بتائیں گے کہ اب پنجاب میں بھی بینک جا کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں. یہ بتایا تم یہ سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں اب بلڈرز کے پیچھے ہاؤسنگ فائنانس کے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ پورے پروجیکٹس آپ کے ساتھ. اس میں ایک چیز کی ہمیں احتیاط کرنی ہے. دیکھیں ڈیولپر فائنانس کے بعد ان کو, ڈیولپر کو ملا 2 سال کے لیے, ٹھیک ہے, آگے اسی کو جو ان کے بارورز ہیں اسے فرام دیٹ وہ ہم مارگیج فائنانس میں ٹرانسفارم کریں. اسے ہم کہتے ہیں ٹرائی پارٹائٹ ارینجمنٹ, کیونکہ اگر ڈیولپر کو دیا اور آگے مارگیج اینڈ یوزر کو نہ دیا تو ان کا مال نہیں بکے گا, تو وہ سائیکل پوری نہیں ہوگی. اس کے لیے ابھی بھی ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے کہ بینک جو ہیں وہ آگے جو ان کے بائر ہیں ان کو دیکھ لیا, انہوں نے ڈیولپر کو دیا, کے جینوئن ڈیولپر تھا سارا دیکھ کے, اور اس کے بعد جب آپ کے اینڈ پہ جا کے جو بارورز ہیں, تاکہ ان کے 4-5-6 ہزار جو گھر بینک کی فائنانسنگ سے بنے جسے ہم ڈیولپر فائنانس کہتے ہیں, وہ آگے جو ہیں ریٹیل مارگیجز میں جائیں, تاکہ جیسے جیسے دیکھیں نا بات سیدھی سی ہے, منڈی میں مال آتا ہے بکتا ہے تو پھر دوسری سپلائی آنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ لوگ آپ دیکھیں گے اس وقت کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو دیا ہے یہ زیادہ آپ کو بتائیں گے. ڈیولپر انڈسٹری کو یہ پورا احساس ہے کہ اب ان کے پاس چوائس نہیں ہے. ایک بہت اہم بات کی اگر اجازت دیں جو آپ نے بھی کی تھی کہ چیٹرز ہیں, آپ بہت اچھا کیا کہ حسن بھائی نے یہ ایکسپلین کیا کہ ڈیولپرز اور چیٹرز میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ان کو بدنام کیا لیکن یہ لوگ بے بس تھے. اس میں ایک چیز آئی ہے ریگولیٹری اتھارٹی, ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی, جو فیڈرل میں تو آ گئی ہے, صوبوں میں بھی آئے گی. لیکن اصول یہ ہوتا ہے کہ وین یو سولیسٹ پبلک منی, صحیح ہے, تو آپ ریگولیٹڈ, کوئی ریگولیٹر تسلی دیتا ہے, اسٹاک چین میں شیئرز آپ لیتے ہیں نا, تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ پیچھے SSP دیکھ رہی ہے. بینکوں میں آپ پیسہ جمع کراتے ہیں تو بینکس کو کون ریگولیٹ کرتا ہے؟ اسٹیٹ بینک. تو ڈیولپرز اگر ہوتے, یہ اتھارٹی ہوتی, کو دیکھنے والا ہوتا, تو یہ اچھے ڈیولپرز رہتے. ابھی انڈیا میں 2016 میں آئی ہے یہ اتھارٹی, ٹھیک ہے, ڈیولپرز بہت خوش ہیں وہاں پہ کہ ہمیں ان چیٹر سے کمپیٹ نہیں کرنا ہے, ہمیں جینون سے کمپیٹ کرنا ہے. تو یہ انشاءاللہ العزیز بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جو پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری میں ہوئی ہے, اور میں حسن بھائی کی بات کو فلی انڈورس کرتا ہوں کہ پریپریٹری چیزیں چلی ہیں. اب ہم کافی آگے جا چکے ہیں انشاءاللہ. اب آن گراؤنڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی. بالکل, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. تو ریگولیٹری انفراسٹرکچر بٹھا دیا ہے اس بار جو پہلے تاریخ میں نہیں تھا. ہمارے ساتھ اکبر شیخ صاحب ہیں, if we can take him online, آباد لاہور کے ریجن سے, ایکس چیئرمین ہیں آباد کے نارتھ کے ریجن کے. اکبر شیخ صاحب, کین یو ہیئر اس؟ جی فرمائیے. جی السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام. اکبر صاحب ہمیں کچھ بتائیے کہ کیا لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے لاہور اور دوسرے علاقوں میں یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ سے متعلق, کیا امپورٹنٹ مائل سٹون ہے جو کہ ہم اچیو کرنے جا رہے ہیں؟ جی جہاں تک مائل سٹون کا تعلق ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی بزنس میں سب سے امپورٹنٹ سینٹیمنٹ ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر نے جو اسکیم دی ہے اس کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ انہوں نے اکانومی کے بارے میں اور ریئل اسٹیٹ کے بارے میں ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ کریٹ کر دیا جس سے کام ہونا شروع ہو گیا. اور دوسری بات یہ کہ ریولیوشنری جو اسٹیپ ہے, انہوں نے بینکوں کو ٹارگیٹس دیے ہیں مارگیج, ہاؤسنگ مارگیج کے لیے. یہ آج تک پاکستان کی 70 سالہ ہسٹری میں نہیں ہوا. تو یہ انشاءاللہ جیسے جیسے یہ پودا جڑ پکڑتا ہے یہ انشاءاللہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ انیشلی جو ٹارگٹ سیٹ کیے گئے تھے, جو 5 ملین ہاؤس ہولڈ کی ہم نے اسٹریٹجی دیکھی تھی اور ہم نے دیکھا کہ 2 ملین اپلیکیشنز آ گئی ہیں,
इज देयर मोर डिमांड? अगर दोबारा खुलें तो कितना अंदाजन मजीद डिमांड आ सकती है? ये पहली बात तो ये है कि हम 5 मिलियन के नंबर को टारगेट नहीं समझते, इसको हम एक डायरेक्शन समझते हैं। विजन है, विजन। ये मंजिल नहीं है, ये रास्ता है। ठीक है। इस रास्ते पर हम चल पड़े हैं, इंशाल्लाह 5 मिलियन 10 मिलियन ये एक मुस्तकिल सफर है और ये बनते रहेंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जैसे ये स्कीम शुरू हुई है तो इसके मुताबिक स्पेशली लाहौर के हवाले से मैं कहूँगा कि पहले रूल्स बने, रूल्स के बाद फिर बिल्डर्स उन रूल्स के तहत प्रोक्योरमेंट करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर वो प्लानिंग स्टेज पर जाते हैं। तो अब माशाल्लाह प्लानिंग स्टेज से निकलकर अब मार्केट एग्जीक्यूशन स्टेज पर आ गई है। सिर्फ लाहौर में हम देखते हैं सिर्फ एलडीए में कोई हर महीने के 2 मिलियन स्क्वायर फीट के नक्शे पास हो रहे हैं। तो ये जैसे नक्शे पास होते हैं ये एग्जीक्यूशन स्टेज में जाएंगे। ठीक है। ओवरऑल पंजाब की क्या सूरत हाल है, थोड़ा सा हमें ब्रीफ करेंगे? आप इसी का मल्टीपल देख लें तो पंजाब में हर महीने को 5 मिलियन स्क्वायर फीट के नक्शे हम समझते हैं कि पास हो रहे हैं। सही है। इस्लामाबाद तो बहुत अच्छा जा रहा है, रावलपिंडी अच्छा जा रहा है, गुजरांवाला की रिपोर्ट्स हमारे पास होती है, यहाँ भी काम शुरू हो गए हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, लाहौर में तो बहुत अच्छा हो रहा है। जी मुझे ये बताइएगा कि एक कंसर्न शो की गई थी बिल्डर्स की तरफ से कि जो कीमतें और फाइनेंसिंग है अगर उसमें मजीद थोड़ा सा, क्योंकि कीमतें प्लॉट की ज्यादा हैं बहुत सारे रीजन्स के अंदर और शहर के अंदर, तो ये ज्यादातर कंड्यूसिव है आउटस्कर्ट्स के अंदर डेवलपमेंट के लिए। विद इन द सिटी क्या इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है इसकी स्कीम में नेक्स्ट फेज के अंदर, ताकि विद इन द सिटी हाउस होल्ड लेना पॉसिबल हो सके थोड़ा? जी हाँ, ये बिल्कुल बजा है, इसलिए कि विद इन द सिटी हम पहली बात तो ये कि नॉर्मली हम समझते हैं कि लो कॉस्ट हाउसिंग है, ये दूर कहीं भी बन जाए, सस्ती होनी चाहिए, लेकिन किसी भी मिडिल क्लास लो कॉस्ट वर्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के करीब हो। ठीक है। और करीब होने के लिए उसको शहर के करीब अपने घर की जरूरत होती है। और जो इस वक्त कैटेगरी 1 और 2 में 3.5 मिलियन की लिमिट सीलिंग लगाई गई है और कैटेगरी 3 में 6 मिलियन रुपीस की सीलिंग लगाई गई है, मार्केट के लिहाज से ये बहुत कम है, इसमें कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही। तो इसका फिर 2 ही वो हैं तरीके। एक तो ये कि क्योंकि स्टेट बैंक की तरफ से मैक्सिमम सीलिंग इस सेंस में नहीं है कि आप चाहे 10 मिलियन का भी मकान है, मॉर्गेज अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन उसमें फिर मॉर्गेज रेट्स बढ़ जाते हैं। तो जरूरत इस अमर की है कि ये 3.5 मिलियन और 6 मिलियन की सीलिंग को कुछ बढ़ाया जाए, स्पेशली 6 मिलियन की सीलिंग को 7.5 मिलियन पर ले आया जाए और 3.5 को 4.5 मिलियन पर ले आया जाए। या ये है कि इस सीलिंग को खत्म कर दिया जाए और सीलिंग लगाई जाए अमाउंट जो कि मॉर्गेज में दिया जा सकता है। आप घर चाहे 8 मिलियन का ले लें, आप कह सकते हैं कि मॉर्गेज आपको 5 मिलियन तक ही मिलेगी। तो ये वो अप्रोच है जो इंडिया का जो आवास योजना प्रोग्राम है, यानी उनका जो प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग प्रोग्राम है, उन्होंने ये अप्रोच लिया और इसलिए देखें कि उनका प्रोग्राम 2000 स्क्वायर फीट के घर को भी कवर ठीक है। आई थिंक करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने एक अपडेट दी। सर मैं बिलाल साहब आपसे थोड़ा सा फीडबैक लूंगा, बिकॉज ये डाइकोटमी है कि एक बड़ा मिडिल क्लास का तबका वो आके कैप हो जाता है 1 लाख के ऊपर, पहली बात। दूसरा जो हाउसिंग प्राइसेस हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। आप सबर्ब्स में देखें कराची के तो 70 से 80% हाउसिंग प्राइसेस 1 साल में बढ़ गई हैं प्लॉट्स की। तो वो जो मिडिल क्लास का तबका है वो किस तरीके से अफोर्ड करे? डू यू सजेस्ट सम चेंजेस लाइक ही रेफर्ड? बिल्कुल, अकबर साहब ने बहुत सही बात की। लोगों के बैंकों ने और स्टेट बैंक की बहुत सपोर्ट है, हमने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि न्यूमरस ट्रेनिंग कराई है अपने स्टाफ की, और दूसरा हमने बैनर्स लगाए हुए, स्टैंडीज़ लगाई हुई ब्रांचेस के अंदर। किसी भी ब्रांच में अगर कोई कस्टमर चला जाता है तो उसको, और इसकी बायलैंग्वेज एप्लीकेशन है ताकि आसानी से इंग्लिश उर्दू में पढ़ सके और कर सके, आसानी से भर सके। दूसरा, आज भी हमारी इसी सिलसिले में मीटिंग हो रही थी कि इस चीज़ को और कितना आसान बनाया जाए, लेकिन ये चीज़ वाकई में थोड़े से चैलेंजेस हैं, जिसके अंदर ये है कि घर की प्राइस का भी चैलेंज है कि इतना मतलब कि नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर स्क्वायर फीट का भी चैलेंज है कि इतना 850 से लेके 1100 तक होना चाहिए, वो भी एक चीज़ है।
दूसरा जो इसमें अंदर जो सही दो बड़े चैलेंजेस हैं, एक ये कि कंस्ट्रक्शन 1 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है अभी हमारे पास, मैं भी अगर देखूंगा तो मेरे पास भी कोई 60-70 के करीब 50 के करीब एप्लीकेशन अप्रूव पड़ी हुई हैं। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि आगे इन्वेंट्री का जो है ना, जिस तरह से मतलब मैंने बख्शी साहब ने बताया कि टाइम लगेगा मतलब कि आने में, इन्वेंट्री आने में मार्केट में, तो इस वक्त 1 साल से पुरानी कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, और पहली दफ़ा अगर लीज ट्रांसफ़र हो तो उस बंदे के नाम पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ जो है ना, काफ़ी चैलेंजेस हैं। कि ये रिलैक्स होनी चाहिए? बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए। अगर आप इसको रिलैक्स करते हैं तो फिर आप देखिएगा इसके अंदर एक इंसान से बहुत बड़ी स्पाइक आएगी इसके अंदर। तमाम बैंक इसके अंदर क्योंकि ऑलरेडी गेयर अप हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी जिस तरह से बताया कि स्टेट बैंक ने सबको टारगेट्स दिए हुए हैं, एंड वी हैव टू डू इट एंड वी हैव टू डिलीवर इट आल्सो इन दिस थिंग। तो एवरी बैंक उन्होंने हमारे जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, इज़ अ पार्ट ऑफ, वेरी मच पार्ट ऑफ आवर मतलब के इंडिकेटर्स, जिसके ऊपर हम अपने चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। तो तमाम बैंकों ने इसके ऊपर किया हुआ है। बिल्कुल, मैं हसन बख्शी साहब से पूछना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इकोनॉमिक्स का मैकेनिज्म है कि ऑब्वियसली यू वांट टू प्रोवाइड टारगेटेड सब्सिडी, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, बट उस लेयर से ऊपर बहुत बड़ी डिमांड है जो क्लॉग्ड हुई हुई है, जिस तरह उन्होंने हाईलाइट भी किया 2-3 पॉइंट्स में। उसको अनलॉक करने की कितनी जरूरत है उस वक्त जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की साइड से आपको सरिया भी महंगा हो रहा है, सीमेंट भी महंगा हो रहा है, तो लागत का जो 20 से 25% इजाफा है लागत में, वो तो सिर्फ बुनियादी मटेरियल से आ गया। देखिए, जब ये कानून बन रहा था या ये रूल बन रहा था स्टेट बैंक के पास, तो हम उसमें पार्ट थे। हमारा सजेशन ये था, पहले एक ही टियर था लो कॉस्ट हाउसिंग का, और उसकी प्राइस थी 3 मिलियन। हमने इनसे रिक्वेस्ट ये की थी कि इसकी बढ़ा के शहर के हिसाब से 5 मिलियन कर दें, और जो सेकंड टियर पहले था ही नहीं, और सेकंड टियर को 8 मिलियन कर दें। तो स्टेट बैंक ने 30 लाख से बढ़ा के 35 लाख रुपए कर दिया, और सेकंड टियर 6 मिलियन इंट्रोड्यूस कर दिया। रीज़न ये था, जब हमने इस पर डिस्कशन की, स्टेट बैंक का और खान साहब का भी कहना ये था कि हम जो सब्सिडाइज करना चाहते हैं फाइनेंशियली इसका इंटरेस्ट रेट, वो लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट सेगमेंट को करना चाहते हैं। और मेरे हिसाब से चूंकि नई चीज़ है, 6 महीने में, साल में रिजल्ट, क्योंकि उनको भी अंदाजा नहीं था कि हम कितने आगे चले जाएंगे, कितनी इस पे आएगा। तो 6 महीने, साल में जब ये रिजल्ट फिगर सामने आने लगेंगे कि कितने लोगों ने 35 लाख रुपए तक के लोन लिए हैं, कितने लोगों ने 60 लाख रुपए के लिए, तो आई थिंक दे विल रिवाइज द पॉलिसी एंड गो अ लिटिल बिट अपवर्ड। हैविंग सेड सो, ये जो अकबर साहब ने भी बात की, मेरे ख्याल में मुनासिब बात है कि हम अगर इस तरह भी देखें कि वो सब्सिडी फर्ज करें 35 लाख के लोन पे कर दे 5% लोन पे, भले मकान 70 लाख का हो, पर 30 लाख का जो लोन ले वो 5% पे ले, और 60 लाख के लोन तक उसको कर दे 7%। तो वो भी एक बड़ी ओपन स्पेस मिल जाएगी। बट जिस हिसाब से मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर इस पे इंटरेस्ट लेते हैं, और डॉक्टर रजा बाकर, उनको क्रेडिट जाता है, उन्होंने भी जिस हिसाब से इसको टेकअप किया हुआ है। देखिए, पहली बार 380 बिलियन का टारगेट सेट हुआ है कि इस साल के आखिर तक ये डिसबर्स करने हैं, विच इज़ 5% ऑफ द टोटल लोन पोर्टफोलियो ऑफ ऑल द बैंक्स। तो हम ये समझते हैं कि इट इज़ अ वेरी गुड बिगिनिंग, और इस बिगिनिंग के बाद यकीनन रास्ते बनेंगे, और जो एक लर्निंग कर्व्स आते हैं उसको देखते हुए इमरान खान साहब भी और रजा बाकर साहब भी चीज़ों को अमेंड करेंगे। इट्स अ लाइफ पॉलिसी, जैसे इन्होंने कहा, उन्होंने कहा, आपने कहा, तो हम जा रहा है उसको कॉन्स्टेंटली। जी, और हमें अब ये क्लैरिटी है एज अ बिल्डर एंड डेवलपर कि खान साहब जो भी जायज़ बात होती है सुनते भी हैं और उस पर ऑर्डर भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सुनी अनसुनी हो जाती है और वो कारपेट के नीचे चले जाती है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन, हम कुछ की स्टैट्स आपके लिए लोड करेंगे, बट बिफोर दैट सर ये बताइए कि ये जो 2-3 सजेशंस दी गई हैं कि इसको जो कैपिंग की गई है 2-3 टियर्स में, इसको मजीद रिलैक्स किया जाए, आपका क्या फीडबैक? बात हो रही है ना, बड़ी माकूल है, लेकिन दोनों चीज़ों की इंपॉर्टेंस भी है। अभी वो सप्लाई नहीं है जो हम कह रहे हैं 35 लाख या हमारे, तो अभी जो सप्लाई जो है मार्केट में, हमें उसको तो महरूम नहीं करना। तो ये जो बात कह रहे हैं ये लोग बिल्कुल ठीक है, बट अल्टीमेटली इस प्रोग्राम का जो मकसद है कि वो लो कॉस्ट गरीबों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग, तो अल्टीमेटली अब वो तो हो सकता है कि 3.5 को प्लस माइनस रिलैक्स करें। होता यह है कि पूरी हैबिटाट जो बनती है, ग्लोबल मॉडल है कि पाकिस्तान इज ऑन गोइंग टू एंटर, मतलब इंडोनेशिया ने एक 2015 में कहा था 1 मिलियन हाउस, ऑलरेडी वो 2018 में 1 मिलियन से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करी, अनहोनी है ये लेकिन जैसे हसन भाई ने कहा कि प्रोसेस करते करते अब आया है कि सप्लाई आएगी मार्केट में,
उसको हम कहते हैं क्रॉस सब्सिडीज एंड स्मार्ट सब्सिडीज। तो स्मार्ट सब्सिडीज तो मिल गई, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत बड़ी सपोर्ट मिल चुकी है। स्मार्ट सब्सिडीज ये है कि इनको रेगुलेटरी रिजीम में कमर्शियल एरिया बढ़ा के दिया जाए। एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलपर के लिए बहुत अहम होता है कि वहाँ तक जो है रोड भी भेजे, ट्रांसपोर्ट भी गवर्नमेंट के काम है। आजकल हर हैबिटाट में वाईफाई होता है और कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। तो अगर किसी डेवलपर को गवर्नमेंट वो इंश्योर करे द वेरी फैक्ट कि उस हैबिटाट से अच्छी ट्रांसपोर्ट एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों की डिमांड आती है, तो उस कमर्शियल एरिया की वैल्यू पड़ती है, तो वो क्रॉस सब्सिडी है। एक एरिया जो आज हम नहीं अभी डिस्कस कर पाए, इजाज़त हो तो मैं जिक्र करूँ कि जो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम में जो पॉलिसी है उसमें हमने रूरल, पेरी अर्बन और अर्बन हाउसिंग को रखा है। पाकिस्तान में पहली बार है कि रूरल हाउसिंग को हम एड्रेस कर रहे हैं। पेरी अर्बन यानी कि स्लम्स एरिया जो है। तो हम अखुवत को 5 अरब रुपए प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किए थे, लेकिन अभी तक 3 अरब मिले हैं उन्हें। ठीक है। 3 अरब में अखुवत ने वेरी पुअर एरियाज, जिसे बॉटम ऑफ द बॉटम कहते हैं, उनको दिए 7,550 घर वो इस वक्त बना चुके हैं, डिलीवर करीब कर चुका है। सही है। उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा अच्छी है, इंक्रीमेंटल है। तो वो मैं समझता हूँ उस एरिया को, मैंने हसन भाई से कल भी एक प्रोग्राम में कहा था कि जैसे कराची का सैलानी ग्रुप है, ट्रिमेंडस काम कर रहा है, ये उस सेगमेंट को कर रहा है जिसे कोई पूछता नहीं, टारगेटेड है। तो नहीं, जो जिसको बेचारे को ये पहली बार आप उसे ये कोई घर की छत की उम्मीद देंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम को बहुत सपोर्ट करना चाहिए। इसमें एक हमारा प्रोग्राम चलता है जो दुनिया में है, स्लम रीडेवलपमेंट का। सही है। तो इन मुंबई में जो धारवी वारा है वहाँ पे डेवलपर को ज़मीन दी जाती है और वो उन्हीं गरीबों को हाई राइज में एक घर, उसमें बाकी वो खुद बहुत कमाता है, वो जैसे हम कहते हैं क्रॉस सब्सिडीज। बहुत प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, दूसरे में इलाकों में भी हो रहे हैं। दूसरा था रूरल हाउसिंग, देहातों के घर। देहातों में भी हमारी आबादी का तकरीबन 55% से ज़्यादा जो है वो देहातों में है। और आप जाइए, मैं अपने इसी प्रोग्राम के तहत मैंने विजिट किए हैं देहात में हमें लगता है ज़मीन ज़्यादा है। जो अंग्रेज़ के दौर में जो दे कहलाता था वो ज़मीन आज भी दे ही है। उसने कुछ 3 से 5 एकड़ शामिलाते दे, मीनिंग वो शामिल हो सकती थी जब आबादी बढ़ेगी। वो वडेरों ने, जिम्मेदारों ने कब्जा कर लिया। तो पंजाब में सिर्फ 25,800 विलेजेस हैं। सही है। उसमें पंजाब हाउसिंग टास्क फोर्स ने काम शुरू किया है, उनसे 30 मॉडल विलेजेस ले रहे हैं कि हम ये 3 से 5 एकड़ के उन्हीं देहातों में मॉडल विलेजेस बनाएं। ठीक है। क्योंकि देखें ना, उस तबके को आप जाकर देखें, मैं विजिट किए हैं, शहरों के स्लम्स आर मच बेटर देन द विलेजेस हु हैव नाउ ट्रांसफॉर्म्ड। फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, यास्मीन लारी साहब ने प्रोग्राम किया थर के इलाकों में बैम्बू का यूज। अब आप उनको जाके एकदम से इनोवेटिव चीजें देने की बजाय जिस चीजें तो बेहतरीन उन्होंने घर बनाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब भी हम देखें कि उस आबादी को जो रूरल हाउसिंग है, और ये तो हम नहीं कर रहे, इंडिया में भी हर जगह हो रहा है कि रूरल हाउसिंग का सेपरेट प्रोग्राम चल रहा है। उनका रिकवरी रेट बहुत अच्छा होता है बाय द वे। जो भी गरीब का जो है, मैं HBFC का MD रहा हूँ, मैं एक बड़ी बबांगे दुहल बात कहता हूँ कि गरीब डिले करता है, गरीब डिफॉल्ट नहीं करता। डिफॉल्ट अमीर करता है। डिफॉल्ट अमीर करता है। ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम थोड़ी स्टैट्स भी रन करते हैं इसके बाद। अगर थोड़ा सा डीकपल करें जो आपने बात की, इट्स वेरी गुड इनसाइट दैट यू प्रोवाइडेड, कि अगर 5 से 7% में टियर 3 तक जा रहा है, सही है, बैंक ऑलरेडी स्टेट बैंक ने क्रेडिट रिस्क तो सारे बैंक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना। अब 300 अरब रुपए सबको मिलके करने हैं ना। तो जो डिफॉल्ट अगर रेट आया अभी 380 अरब रुपए, तो सब बैंक मिलके करेंगे ना। तो क्रेडिट रिस्क ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड हो गया है। प्लस जो अगर उससे ऊपर की टियर में लोग घर, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ तक का भी घर मैं बनाना चाहता हूँ, तो उस सेगमेंट तक मुझे नया पाकिस्तान में दें, उससे ऊपर वाला जो हिस्सा है वो मुझे मार्केट रेट पे दे दें। तो अगर बैंक, इफ बैंक वांट्स टू चार्ज अ हायर रेट, सो वो उस पोर्शन पे चार्ज कर ले। बिकॉज अगर मैं बहुत सा देयर इज अ अपॉर्चुनिटी कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मार्केट रेट पे मॉर्गेज अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनकी सैलरी 70,000 से लेके 1.5 लाख तक है। वो किस तरीके से इंक्लूड हो, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। जी प्लीज सर, यू वांट। बाकी सब एक चीज ऐड करूंगा, सॉरी बख्शी साहब, इसके अंदर क्रेडिट रिस्क की इतनी चीज़ नहीं है। बैंक आर वेरी कंड्यूसिव, यू नो, वेरी गिव अ क्रेडिट, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास PMRC की गारंटी भी मौजूद है इसके ऊपर, जो 40% इसे कवर करती है। ठीक है ना। इस चीज़ के ऊपर मेन चीज़ यही है कि जो ये पैरामीटर्स है ना,
these are very मतलब कि concrete मतलब कि इतना जिस तरह से आप बताया ना कि इतने मतलब 3.5 मिलियन से घर के उसकी वैल्यू नहीं 6 मिलियन से ऊपर नहीं होना चाहिए। दूसरा पहली मॉर्गेज होनी चाहिए जो बिल्डर के 1 साल से पहले उसकी कंप्लीशन मतलब वो होनी चाहिए, और पहली दफ़ा जो लीज ट्रांसफर उस बंदे के नाम पे हो रही हो। दीज आर वेरी स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया, और इसकी वजह से जो है ना जो ओवरऑल आप जो नंबर्स देखेंगे ना बैंकिंग सेक्टर के वो थोड़े हॉल्ट हो रहे हैं इस चक्कर के। अगर ये थोड़ी सी इसके अंदर लिवरेज दे दी जाए ना, यू सी दिस नंबर। अच्छा, मजे की बात आपने ये बताई कि जो बैंक का रिस्क होता है वो तो क्रेडिट रिस्क होता है ना, लेकिन रेगुलेशन की वजह से वो भी ईज ऑफ हो गया है, तो दैट अगेन मींस के रिस्क कवर किया है। हाँ, तो रिस्क कवर किया, दैट मींस नेट जो रिस्क आया वो तो रिड्यूस हो गया ना। बैंक अगर मैं उधार दे रहा हूँ आपको तो मुझे पता है हाँ, तो मैं तो यहाँ से कवर हो गया, तो मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि मैं और कितना दे सकता हूँ उसके ऊपर। मैं थोड़ा सा यहाँ ऐड करूँ, देखिए यहाँ पर बात हुई कि सप्लाई लाइन नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। सप्लाई लाइन क्यों नहीं है? देखिए ये पॉलिसी आए हुए 2-3 महीने हुए, 4 महीने हुए। इससे पहले जो भी प्रोजेक्ट आते थे इंक्लूडिंग मेरे, तो मेरे पास बनाने का सिर्फ कस्टमर एडवांस से बनाता था मैं। मेरी हर मुमकिन कोशिश होती थी मैं कि 80-90-100% माल भेज दूं, क्योंकि उसी से बिल्डिंग बनेगी। बैंक तो देते नहीं थे पैसे। तो अब जो पुराने प्रोजेक्ट 2-3 साल 1 साल 6 महीने पहले आए वो सब बिके हुए हैं। सो ना नए अप्रूवल होंगे, नए प्रोजेक्ट आएंगे तो लोग इनके पास जाएंगे। पहले तो तकरीबन सारे बिके हुए। दूसरी बात इन्होंने कही सैलानी की, बहुत अच्छी बात है कि आज सुबह ही हमारी मीटिंग थी और सैलानी इज कमिंग अप विद अ प्रोजेक्ट ऑफ 3000 हाउसिंग यूनिट्स व्हिच दे वांट टू गिव इट ऑन कॉस्ट। और 10 साल की पेमेंट पे 15 साल की। ये एक मिसाल दे रहा हूं मैं। ये इस तरह इतने बड़े बड़े नंबर्स है। देखिए ये अनफोल्ड होती जाएंगी चीजें। 2-4 सक्सेस स्टोरीज बन गई तो आप देखिएगा ये जो हाई एंड का जो बनाने वाला है ना, वो भी बोलेगा कि भाई हम इसमें बनाए, नफा कम है पर मैस हाउसिंग है और बैंक्स इन्वॉल्व है, एक इंडस्ट्री की तरह काम वॉल्यूम पे प्ले करें जी। तो ये मैं ही समझता हूँ कि अब ये गेम चेंज होने वाला है। ठीक है, सही कह रहे हैं। इसमें एक स्नोबॉल इफेक्ट तो आ गया, मतलब कि अब ये आगे जो बढ़ता जाएगा जितना हमारा इस पे फोकस आ गया, जितनी बैंक की इसके ऊपर इस पे फोकस है कि इसको आगे किस तरह से और किस तरह से इसको बढ़ाना है, और जितना इस पे स्टेट बैंक सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने कई सर्कुलर्स पिछले दिनों निकाले हैं जिसके अंदर जो कि अपना ये जो लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए उनकी जो, क्योंकि इनकी इनकम थोड़ी सी कैलकुलेशन में मुश्किल, तो उनके अंदर भी रिलैक्सेशन दी है। बट द ओनली रिलैक्सेशन व्हिच विल रिक्वायर्ड फ्रॉम दिस दैट विल कमिंग फ्रॉम बिल्कुल। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ नेट मार्जिन्स अगर नाज़रीन हम आपको बता सकें, आई विल कम बैक टू यू, कुछ थोड़ा सा की डेटा हम दिखा सकें तो हम देख रहे हैं कुछ स्टील सेक्टर के हम नेट मार्जिन्स का एनालिसिस करें तो स्टील सेक्टर के नेट मार्जिन्स ऑलमोस्ट नेगेटिव हो गए थे। अगर 3 क्वार्टर के पीछे हम एनालाइज करें तो हम देखते हैं गिरते हुए गए। अब यहाँ से स्टील सेक्टर के नेट मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो अब पैसा कमाना शुरू हो गई हैं, उनकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी अब पॉजिटिव हो गई है। सो दैट शोज कि देयर इज अ डिमांड पिकअप इन द स्टील सेक्टर एज वेल। अगर हम मजीद जाने सेक्टर की अर्निंग्स को, इफ यू कैन मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। सो सेक्टर की अर्निंग्स अगर देखें तो सीमेंट सेक्टर के अंदर ग्रेजुअली अर्निंग्स में इंक्रीज आया। हम देखें नियर जीरो के करीब पूरे सेक्टर की नेट अर्निंग्स रही थी, जो कि अब लास्ट क्वार्टर में हम देख रहे हैं कि दोबारा पॉजिटिव होना शुरू हो गई है। तो अभी तो ये डिमांड आई नहीं है और ये डिस्पैचेस के नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही सीमेंट की और स्टील की। बहुत से प्रोजेक्ट्स अभी अप्रूवल में है और बहुत सी अभी एक्टिविटी हम देख रहे हैं होना बाकी हैं। तभी भी आप देखें कि सीमेंट की जो प्रॉफिटेबिलिटी ये नंबर्स है वो अभी से ग्रो होना शुरू हो गए हैं। अगर हम मजीद आगे जाइए और आपको कुछ और स्टैट्स दिखाएं तो ग्रॉस मार्जिन भी हम देखें ग्रेजुअली वो कोर मार्जिन इंप्रूव होना शुरू हो गए सीमेंट सेक्टर की कंपनीज के। सो ग्रॉस मार्जिन अगेन पैदावारी लागत और जो सेल की है उसका जो नेट डिफरेंस है वो ग्रॉस मार्जिन की सूरत में परसेंटेज टर्म्स में हम आपको बता देते हैं। तो वो नेट मार्जिन और ग्रॉस मार्जिन में ये रिफ्लेक्शन नजर आ रही है। सो अगेन ओवरऑल सेक्टर की ये अगर कहना, अगर आप आर्ग्यूमेंट देंगे कि सेक्टर्स और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और दूसरे मोहल्ले का बड़ी इंडस्ट्रीज, अलाइड इंडस्ट्रीज नुकसान उठा रही हैं, तो दैट इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। अभी तो ये डिमांड आनी बाकी है और हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा शुरू हो गया है। इन्फ्लेशन के नंबर्स आर द की। यहाँ पे इन्फ्लेशन को 5 से 7 के बैंड में और शॉर्ट टर्म में 7 से 9 के बैंड में होना बहुत जरूरी है। जो लेटेस्ट नंबर्स आए हैं, इफ यू कैन शेयर दैट विद यू, 5.7% रही है ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन। सो दैट इज अगेन अ रिकॉर्ड लो इन्फ्लेशन। तो यहाँ से स्टेट बैंक भी कॉन्फिडेंट है। आप कुछ बता रहे जी। मैं बैंक हजरात जो है ना हमारे, ये एक तो अच्छी बात है कि इस्लामिक बैंक तो पहले भी थे, सिर्फ जहाँ नहीं थे ये लो इनकम सेगमेंट में नहीं थे।
बाकी बैंक तो थे ही नहीं हाउसिंग फाइनेंस जी में। बिल्कुल नहीं था। लेकिन इसमें हमने स्टेट बैंक के साथ मिलके जो हमारी टास्क फोर्स थी बहुत काम किया था। जो चीज़ें कहलाती हैं, एक कहलाती है इनफॉर्मल इनकम असेसमेंट, सही। कि जो लो इनकम के या लोअर मिडिल इनकम सेगमेंट के लोग आएंगे वो डॉक्यूमेंटेड इनकम से नहीं आएंगे, और दुनिया भर में वो इनफॉर्मल इनकम असेसमेंट का मॉडल होता है। अभी तक बैंकों में स्टेट बैंक ने उनको वो गाइडलाइंस नहीं दी, उनको इस तरह ट्रेन नहीं किया। सही है। अब ये लोग जो हैं ये तो पीटी वगैरह के होंगे, लेकिन आम जाइए तो कमा रहे होते हैं, लेकिन उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। देयर इज अ मॉडल, अखुवत उसी मॉडल पे चलता है, ग्रामीण उसी मॉडल पे चलता है, हाउ टू असेस इनफॉर्मल इनकम। दूसरा ये होता है कि ये गरीब 20-25 हज़ार में गुजारा नहीं हो रहा होता। फैक्ट ऑफ लाइफ ये, अगर आप जाके डीप इंटरव्यू करें, हमने एक पूरा सर्वे किया था 2016 में, डिफिट की स्टडी थी, इनकी फैमिली के दूसरे हजरात भी काम करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक फार्मूला कहलाया था, ग्लोबली एक्सेप्टेड फार्मूला है, कि जिसे कहते हैं क्लबिंग ऑफ फैमिली इनकम। सही है। तो वो मिल के जो है ना, बैंकों को भी दो चीज़ों पे बहुत, स्टेट बैंक में काम हुआ था, आईएफसी के लोग थे, मैं था, हसन भाई वगैरह भी आते रहे हमारी उन मीटिंग में। तो अभी तक उसकी गाइडलाइंस नहीं आई, स्टेट बैंक शुड डू इट, और फिर बैंकों के साथ उसका अवेयरनेस प्रोग्राम आईएफसी इज विलिंग टू कैसे करनी है, दुनिया में कैसे हो रही है। क्योंकि जो हम जिस सेगमेंट की बात कर रहे हैं ना जी, वो सेगमेंट जो है, आबाद से पूछिए, वो घर बुक कराता है, बहुत कम होता है कि वो डिफॉल्ट करता है। अगर ये उस चक्कर में पड़ जाते कि जी तू अपनी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी दिखा, तो ये कभी नहीं कर पाए। इन्होंने ट्रस्ट किया। ट्रस्ट क्यों किया? कि एक तो देख लिया आदमी को, दूसरा ये है कि अपफ्रंट जिसने दिया है वो रिस्क तो उसका है ना। बिल्कुल। तो वो रिस्क अपना 20-30% जब अपफ्रंट दे रहा है, तो वो डिफॉल्ट बहुत कम शायद होता होगा। तो इसलिए ये दो चीज़ें भी मैं स्टेट बैंक से भी ये गुजारिश करूंगा कि वो काम तो बहुत हो चुका था, बैंकों से भी उस पर आईएफसी ने कहा था कि 4 सूबों में अवेयरनेस वर्कशॉप्स हम करेंगे। तो ये भी जिस सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं ना जी, हमें ये लाना होगा, क्लबिंग इफेक्ट लाना होगा, और डेवलपर्स को भी ये फैसिलिटेट करना है कि जब घर बुक कर ले, तो डेवलपर ने अपना प्रोजेक्ट 2 से 2.5 साल जनरली पीरियड होता है डेवलपर फाइनेंस का, उसके बाद वो वही फाइनेंसिंग जो डेवलपर को मिली है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए इन द नेम ऑफ द एंड बोरोवर्स। तो ये सिस्टम अभी तक उस तरह हुआ नहीं है, बट आई एम श्योर काम हो रहा है। और जैसे हसन भाई ने कहा कि वो तो चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता सफर तो शुरू अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, बड़ा डायनेमिक है। उसमें सबसे बड़ा जो कमाल है, जो हसन भाई ने शुरू में कहा था, कि प्राइम मिनिस्टर जान नहीं छोड़ रहे। सही। हर हफ्ते जुमेरात को 3-3:30 बजे मीटिंग करते हैं, और सब स्टेक होल्डर से वो पूछ रहे होते हैं, जो लोग इन्वॉल्व है ना, जो ब्यूरोक्रेसी और जो लोग पहले जिनसे मिलना मुश्किल होता था, अब वो ये तैयारी करके जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा। दिस इज अ डायनामिक चेंज जो हो रही है। और मैं स्टेट बैंक सारे मिलके प्रमोट कर रहे हैं, दैट हैज नेवर हैपेंड इन पाकिस्तान बिफोर। तो ये जैसे इन्होंने बैंक्स का कहा कि देखिए, मैंने जैसे आपसे अर्ज किया कि हमारे यहाँ 5% मैंडेटरी क्रेडिट है, इंडिया में 10% है, दूसरे मुल्कों में तकरीबन सब में 10% है। हमारा भी मुतालबा तो यही था जब हमने किया था टास्क फोर्स में, हसन भाई भी हमारे साथ थे कि 10 किया जाए, लेकिन हम 5 पे भी खुश हैं कि कम से कम सफर इब्तिदा तो हुई, शुरू हुआ है। बैंक भी थोड़े से, इनका मसला नहीं है, ठीक है, मसला जो है वो नॉर्मल कन्वेंशनल बैंक्स का है, जिन्होंने हाउसिंग फाइनेंस ना होने के बराबर की हुई है। बिल्कुल। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द प्रोग्राम। पहले मैं आपकी कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लूं। एग्जैक्टली बताइए नाजरीन को या प्राइम मिनिस्टर साहब को कि यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो कि हमें करनी है, और उसका इम्पैक्ट कितना एम्पलीफाई हो सकता है इस पूरे प्रोजेक्ट्स में। देखिए, मेरे हिसाब से 3 चीजें रह गई हैं जिसपे काम हो रहा है। एक तो अप्रूवल डिजिटल होना चाहिए। सही है। सिंध में जैसे 1 ट्रिलियन के प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, सही है, अप्रूवल नहीं हो रहा। 1 ट्रिलियन के। दूसरा काम जो करना पड़ेगा वो प्राइम मिनिस्टर ने, जिसपे उन्होंने काम शुरू किया है, लैंड रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करना पड़ेगा। अगर ये काम ये इन्होंने कर गए तो आप समझें कि ना सिर्फ पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बेहिसाब आएगी, क्योंकि बायर मौजूद है ना, 12 मिलियन बायर मौजूद है। और तीसरा मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह ये एक हफ्ते में एक मीटिंग करते हैं, 1 साल ये मीटिंग इस तरह और चलती रही तो सब पजल अपनी जगह सीधे हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है जी जी सर, कोई प्लीज। ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था, लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिंध में भी आया था, पंजाब में उस पर बहुत काम हुआ। ठीक है। तो पंजाब के बहुत से रिकॉर्ड जो है लैंड के, ना जिससे पहले क्या होता था, पटवारी के पास खाता होता था या इधर, तो वो मॉर्गेजेबल खाता नहीं है, उसकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं होती थी। अब ये पंजाब में भी है, अब सिंध में भी काम शुरू हुआ है, बट आई फुली एग्री एंड एंडोर्स कि इसको स्पीड अप करना। बिल्कुल सही कहा। मैं बिलाल साहब का फाइनल फीडबैक ले। जी सर।
جی جس طرح سے بیگم صاحب نے بتایا تھا کہ اب بینکس جو ہیں سر وہ پراکسی انکم کے اوپر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ تو کرتے ہیں بیسکلی، اور دوسرے بینکس بھی مجھے پتہ ہے کہ کر رہے ہیں کہ ضروری نہیں کہ اس کی انکم اس کے ایکسپینس آؤٹ سے جس طرح سے ہم کو پتہ چلے اس سے بھی ہم لے لیتے ہیں ساری انکم، ضروری نہیں کہ اس کا انکم ٹیکس ہی ہو ریٹرن ہو اس سے، تو اسے ہم پراکسی انکم سے کیلکولیٹ کر دیتے ہیں۔ باقی جو میں نے آپ کو بتایا کہ جی جو تھوڑے بہت چیلنجز ہیں، باقی فوکس پش بہت زیادہ ہے ہر بینک کا، میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں سارے بینکوں میں میرے کولیگس مطلب کولیگس بیٹھے ہوئے ہیں، پیئرز بیٹھے ہوئے ہیں، پہ آپ پہ کہتے ہیں سپورٹ بہت زیادہ ہے۔ اونلی تھنگ جو تھوڑے بہت یہ چیلنجز ہیں جو میں نے آپ کو دوبارہ ریٹریٹ کر دیتا ہوں، جس میں یہی ہے کہ اپنا اس کی جو لمٹ ہے اس کو مطلب کہ تھوڑا سا وہاں پہ کہیں پھنس جاتے ہیں آ کے، وہ جو اس کی وہ اپنا کنسٹرکشن 1 سال سے پرانی نہیں ہونی چاہیے وہاں پہ پھنس جاتے ہیں، یا ایک پہلی جو لیز ٹرانسفر ہو تو وہاں پہ ہم پھنس جاتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیے، کیونکہ اپروول سب بینکوں کے پاس پڑی ہوئی ہے، یہ کہ آگے اس کو اینڈ یوزر کیونکہ ان کی انوینٹری آئے گی تو پھر ہم ڈسپرس بالکل آئی تھنک بہت امپورٹنٹ۔ رننگ شارٹ آف ٹائم، وی رننگ شارٹ آف ٹائم، پلیز کوئکلی سر ون ورڈ سر۔ کوئکلی یہ ہے کہ جو بینکس کے جو پرانے لیگل کے لوگ ہیں نا وہ مارگیجز کے ٹرینڈ نہیں ہیں، ان کو ٹریننگ بھی کرنا ضروری ہے، اس کو ٹریننگ دینی چاہیے، جو HBFC ٹائپ کے لوگ ہیں ان کی ٹریننگ ہو چکی ہے کہ ٹائٹل کو مارگیج کیسے کیا۔ بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا۔ حسن بخشی صاحب، اٹس آلویز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو۔ بلال صاحب، اٹس آلویز ونڈرفل گیٹنگ یور انسائٹس۔ ناظرین 36% ٹارگیٹ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ کا تھا وہ ڈیٹا بتا رہا ہے کہ وہ ان لائن ہے کہ کمپلیٹ ہو۔ جب دوبارہ اپلیکیشنز کھلتی ہیں، یہاں سے انفراسٹرکچر پروجیکٹس ریڈی ہوتے ہیں، تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ another 36% یہاں سے ایڈ ہو سکتا ہے۔ تو 4 ملین ہاؤس ہولڈ پاکستان میں بن سکتے ہیں اگلے 2 سے 3 سال میں اگر تمام انفراسٹرکچر ریڈی ہو۔ بٹ دا پوائنٹ از کہ ان کی ابھی ڈیمانڈ آپ کے کاسٹ آف پروڈکشن میں ابھی آنا باقی ہے، تو ہیوج کنسٹرکشن بوم وی کین ایکسپیکٹ ان نیکسٹ 2 to 3 ایئرس۔ کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کو ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان باقر عباس جعفری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔